नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं दिल से, तहे दिल से। आई वेलकम यू विथ माय ओपन आर्म्स। Let us talk about the new concept. I am going to explain, I am going to elaborate new concept, that is time and tense. My dear friends, you will be able to have a lot of information related to time and tense, and this is a marvelous topic you are going to have and you are going to understand. So I hope that you will watch the complete video, and if you are new on my YouTube channel, then you should subscribe to my channel and share this video among your friends and comment, like and share. Let us understand the concept of time and tense. First of all, I would like to tell you that what are the differences between time and tense. First of all, I love to tell that tense is a grammatical concept, but time is a non-grammatical concept. It is a universal concept, but it is not a universal concept. Tense is related to grammar, but time is not related to grammar. Tense is used to denote the time of an action. Tense denotes the time of an action, but time does not denote tense. Okay, tense किसी भी कार्य के समय को बताना टेंस कहलाता है। टेंस और टाइम में फर्क है दोस्तों। हम समझेंगे क्या फर्क है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। कुछ सेंटेंस लेते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है यहाँ पर, कपिल देव प्लेज क्रिकेट। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कपिल देव played cricket. थर्ड सेंटेंस है कपिल देव will play cricket. मेरे प्यारे दोस्तों, look at these sentences carefully. You should be able to look at these sentences very carefully, because it is very important to understand for you. You will understand this concept very well. I think that I have written 3 sentences here, and be a good listener if you would like to become a good speaker. Here, see that. Here I have written 3 sentences, sentence A, B, C. Here in sentence A, I have written Kapil Dev plays cricket. In sentence B, I have written Kapil Dev played cricket, and in sentence C, I have written Kapil Dev will play cricket. Let us understand the sentences here. Plays. Here, plays denotes what? Plays denotes present time. Present time. Therefore, this plays is present tense. यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो प्लेज है, यह क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। ये प्लेज जो क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। इसीलिए प्लेज को किस टेंस में बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। याद रखिएगा, ये वर्ब्स क्या करता है? किसी भी कार्य के समय को बताता है, यह कार्य किस समय में होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लेज है वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, इसलिए ये प्लेज किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पर आप प्लेड देख रहे हैं, ये प्लेड जो है वो आपको पास्ट टाइम को बता रहा है। पास्ट टाइम को बता रहा है, इसलिए इस प्लेड को हम किस टेंस में बोलेंगे? पास्ट टेंस में बोलेंगे दोस्तों। Here in sentence A, plays denotes present time, therefore plays is said to be in the present tense, and in sentence B, played denotes the past time, therefore played is said to be in the past tense. Now will play. गौर से देखिएगा दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। विल प्ले यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? तो फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है दोस्तों। फ्यूचर टाइम को बता रहा है, और इसीलिए जो है विल प्ले क्या है? फ्यूचर टेंस है। In sentence A, I have told you plays denotes present time, therefore plays is plays is present tense, and played denotes refers to past time, therefore played is said to be in the past tense, and will play refers to future time, therefore will play is said to be, can be said
कैन बी सेड टू बी फ्यूचर टेंस। मेरे कहने का ये तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, कि प्लेज जो है वो प्रेजेंट टाइम को बताता है। कपिल देव प्लेज क्रिकेट का मतलब है कपिल देव जो है क्रिकेट खेलता है। खेलता है मतलब क्रिकेट खेलता है, मतलब ये क्या कर रहा है, खेलने का काम जो है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्लेड, कपिल देव प्लेड क्रिकेट, कपिल देव क्रिकेट खेलते थे। प्लेड जो है वो पास्ट को बता रहा है, पास्ट टाइम को, खेलते थे मतलब खेलने की क्रिया पास्ट में होती थी और पास्ट टाइम को बताता है, इसलिए प्लेड जो है पास्ट टेंस में है। विल प्ले जो है कपिल देव विल प्ले क्रिकेट, कपिल देव क्रिकेट खेलेंगे। विल प्ले यहाँ पर क्या बता रहा है, भविष्य में खेलेंगे, तो ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है, इसलिए विल प्ले जो है फ्यूचर टेंस में है। मेरे प्यारे दोस्तों, टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट। देखिए ये जो टेंस में क्या होता है कि अगर जो वर्ब प्रेजेंट टाइम को बता रहा है वो प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा, अगर जो वर्ब पास्ट टाइम को बता रहा है वो वर्ब पास्ट टेंस कहलाएगा, और जो वर्ब जो है फ्यूचर टाइम को बता रहा है वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब प्रश्न ये है कि सर फिर ये टाइम एंड टेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम सभी जानते हैं टेंस जो होते हैं दे आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामेरियन, लेकिन टेंस जो है वो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार फ्यूचर टेंस, देयर इज नो फ्यूचर टेंस, देयर आर 3 टाइप्स, 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देयर इज नो फ्यूचर टेंस। हम बताएंगे कि फ्यूचर टेंस जो है क्यों नहीं होता है, तो हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार से भी पढ़ेंगे और मॉडर्न ग्रामेरियन के हिसाब से भी पढ़ेंगे। हमें लगता है आपको समझ में आ गया। ए वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। ऐसा वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता हो उस वर्ब को प्रेजेंट टेंस का हम वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जो पास्ट टाइम को डिनोट करता है उसे पास्ट टेंस का वर्ब कहते हैं, और ऐसा वर्ब जो फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है उसे फ्यूचर टेंस का वर्ब कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हमेशा प्रेजेंट, हमेशा जो है ये जो है क्या वर्ब कभी क्या होता है, एक वर्ब जो होता है वो कई सारे टाइम को बताता है, तो उस परिस्थिति में रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन वो फ्यूचर टाइम को बताता है। रहता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वो फ्यूचर टाइम को बताता है। इसलिए टाइम एंड टेंस कॉन्सेप्ट की जरूरत हुई, क्योंकि टेंस में जो लूप होल था उसको पूरा करने के लिए कॉन्सेप्ट निर्माण किया गया, कमी को दूर करने के लिए। वो टॉपिक कौन है, टाइम एंड टेंस। अब हम देखेंगे, कैसे देखेंगे उसको हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है लूप होल है, इसलिए टाइम एंड टेंस एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। देखिए जैसे हम कहते हैं इट इज गोइंग टू रेन, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए। इट इज गोइंग टू रेन का मतलब होता है वर्षा होने वाली है या वर्षा होने जा रही है, इसका होता है वर्षा होने वाली है। इट इज टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्षा होने वाली है। अब प्रश्न है यह वर्षा होने का जो क्रिया ये किस में होने वाला है, ये फ्यूचर टाइम को। इट इज गोइंग टू रेन किसको बता रहा है, ये वर्ब, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। इसका मतलब आप सोचिएगा कि फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, नहीं, ये वर्ब है प्रेजेंट टेंस का ही, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, लेकिन टाइम क्या कर रहा है, फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। इट इज गोइंग टू रेन जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्रिया है, वर्ब्स है, लेकिन ये किसको बता रहा है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो यही समझना है, टाइम एंड टेंस में यही फर्क है। अगर प्रेजेंट टेंस की क्रिया है तो प्रेजेंट टाइम को, टेंस में क्या होता है कि अगर प्रेजेंट टेंस की जो भी क्रियाएं हैं वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस की क्रियाएं हैं, प्रेजेंट टेंस का अगर वर्ब है तो प्रेजेंट टाइम को ही बताएगा, प्रेजेंट टाइम को ही बताएगा। अगर पास्ट का जो है, पास्ट का है तो पास्ट टाइम को ही, पास्ट टेंस का है तो पास्ट टाइम को ही बताएगा। फ्यूचर है तो फ्यूचर टाइम को ही बताएगा, याद रखिएगा। लेकिन टाइम एंड टेंस में क्या होता है कि वो क्रिया प्रेजेंट में रहता है लेकिन वो टाइम बताता है फ्यूचर टाइम को। हमने क्या कहा कि प्रेजेंट, अगर ऐसा क्रिया जो प्रेजेंट टाइम को बताए उसे प्रेजेंट टेंस की क्रिया कहते हैं, अगर ऐसा क्रिया जो पास्ट टाइम को बताए उसे पास्ट टेंस की क्रिया कहेंगे, ऐसा क्रिया जो फ्यूचर टाइम को बताए उसे फ्यूचर टेंस। अब बताओ ये कौन टेंस में तुम कहोगे ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है,
हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये टाइम किसको बता रहा है? फ्यूचर टाइम को बता रहा है। यही टाइम टेंस में फर्क है। मतलब टेंस कोई और है लेकिन टाइम कोई और बता रहा है। मतलब जो टेंस है वही टाइम बताना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस का क्रिया है तो प्रेजेंट के टाइम को बताया था, वो टेंस है। अगर वो प्रेजेंट टेंस का क्रिया है और फ्यूचर टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम को बता रहा है, तो समझ जाना वो टाइम एंड टेंस है, वो टेंस नहीं है। चलिए आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। और भी कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें आप सभी, क्योंकि यह जो वीडियो है स्पेशली आपके लिए है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जैसा कि हमने बताया कि सिंपल प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इट इज गोइंग टू रेन, ये किसको बता रहा है? ये आपको फ्यूचर टाइम को बता रहा है। भविष्य में ये जो है बारिश होने की बात हो रही है, वर्षा होने वाली है, हो नहीं रही है, फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। इसलिए इज गोइंग क्या है? प्रेजेंट टेंस है, लेकिन टाइम जो है फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है। एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों, उस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा। हम जब बोलते हैं मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए। इस सेंटेंस, इस मिल्क इज व्हाइट का दूध उजला था, है और रहेगा, तीनों सेंस हो रहा है दोस्तों। ये सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है। इस क्या है? प्रेजेंट टेंस की क्रिया है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का है ना? प्रेजेंट टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। लेकिन ये इज किस टाइम को बता रहा है? यहां पर ये जो टाइम बता रहा है, ये तीनों टाइम को बता रहा है। ये आपका प्रेजेंट टाइम को भी बता रहा है, पास्ट टाइम को भी बता रहा है, और आपका फ्यूचर टाइम को भी बता रहा है। देखिए ये टेंस प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को भी बता रहा है, पास्ट टाइम को भी बता रहा है, फ्यूचर। मतलब अगर हम बोले मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला है, दूध उजला है, था और रहेगा, तीनों का इंग्लिश होगा मिल्क इज व्हाइट। दूध उजला है, था और रहेगा, ये तीनों टाइम को बता रहा है। यही टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि ये इज जो आप देख रहे हैं, इज व्हाइट क्या बता रहा है? मिल्क इज व्हाइट का मतलब होता है दूध उजला है, उजला होता है, उजला था और उजला रहेगा। ये तीनों सेंस दे रहा है। मतलब प्रेजेंट टेंस में इसका वर्ब है, लेकिन तीनों टाइम को बता रहा है। हमने बताया कि अगर प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टाइम को ये बताता, तब टेंस कहलाता। इज अगर जो है प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टाइम को इसको बताना चाहिए, बल्कि ये प्रेजेंट टाइम को न बता करके पास्ट टाइम को भी बता रहा है, फ्यूचर टाइम को भी बता रहा है। लेकिन हम टेंस में क्या पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस का अगर वर्ब है तो प्रेजेंट टाइम को बताएगा, पास्ट टेंस का वर्ब है इसलिए वो पास्ट टेंस का वर्ब कहला रहा है क्योंकि वो पास्ट टाइम को बता रहा है, इसलिए वो फ्यूचर टेंस का वर्ब कहला रहा है क्योंकि फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है अभी जैसे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे, आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड टेंस में क्या फर्क है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं यह वीडियो जो है आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं। हम जानते हैं टेंस 3 है, टाइम भी 3 है, प्रेजेंट पास्ट है, टाइम के 3 खंड है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और टेंस भी 3 है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब 3 टेंस क्यों है? हमने कहा कि 3 टेंस क्या है। अगर टेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है तो प्रेजेंट टाइम को बताए, अगर फ्यूचर टेंस का वो वर्ब है तो फ्यूचर टाइम को बताए, अगर पास्ट टेंस का अगर वर्ब है तो पास्ट टाइम को ही बताए। बल्कि ऐसा नहीं होता है, इसलिए टाइम एंड टेंस की जरूरत पड़ी, और इसीलिए हम कह रहे हैं जिस टेंस में रहता है उसी टेंस, उस अगर कोई वर्ब है, अगर हम लिखते हैं गोज, अगर गोज जो है क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, इसका ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट टाइम को बता रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? ये प्रेजेंट टाइम का वर्ब है। याद रखिए इसको, अगर वो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है तो क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। समझना जरूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो चीजें हम बता रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा कि जैसे आप देख रहे हैं गोज है यहाँ पर, तो गोज जो है वो किस टेंस में है आप देख रहे हैं? गोज जो है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है तब ये प्रेजेंट टेंस में होगा। याद रखिएगा, प्रेजेंट
टाइम को बता रहा है तो प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन यही गोज अगर प्रेजेंटो टाइम को बताए, प्रेजेंटो टाइम को बताए, पास्टो टाइम को बताए और फ्यूचर टाइम को भी बता रहा है तो समझ जाना ये गोज जो है टाइम इंटेंस है। डिड यू गेट? जैसे हम बोलते हैं कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कि कैसे जो है टेंस दो ही तरह के होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं। कैसे हम उसकी बात कर रहे हैं, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही प्रेजेंट देखिए प्रेजेंट और प्लस पास्ट इस दो ही टेंस से जो है याद रखिएगा प्रेजेंट का भी बोध हो जाता है। इस दो टेंस से जो है ये आप जो देख रहे हैं दो टेंस, इससे प्रेजेंट टाइम का भी बोध हो जाता है, पास्ट टाइम का भी बोध हो जाता है और फ्यूचर टाइम का भी बोध हो जाता है। तो फिर फ्यूचर टेंस क्यों? फ्यूचर टेंस इसलिए क्योंकि फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करना है। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस तीनों टाइम को बता देता है, प्रेजेंट टेंस तीनों टाइम को बता देता है, प्रेजेंट टाइम को भी बता देता है, पास्ट टाइम को भी बता देता है और फ्यूचर टाइम को भी बता देता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जब हम सेंटेंस एक बोलते हैं, कई सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे ही गोज टू पटना टुमारो। अब देख लीजिए इस सेंटेंस में वह कल पटना जाएगा, यहां ये V5 है और इसका सेंस क्या हो रहा है? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है। ये फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है दोस्तों। हैज प्रेजेंट टेंस का वर्ब है लेकिन फ्यूचर टाइम को बता रहा है, तो फिर फ्यूचर टेंस की आवश्यकता क्यों? जब प्रेजेंट ही फ्यूचर को बता रहा है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम को बता रहा है और पास्ट टेंस भी क्या कर रहा है? पास्ट टाइम को बता रहा है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है, तो फिर क्या जरूरत है हमें फ्यूचर टेंस की? इसीलिए मॉडर्न ग्रामर ने कहा कि प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस होते हैं, क्योंकि टेंस का काम होता है टाइम को डिनोट करना और टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो है तीनों टाइम को कवर कर लेता है, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों टाइम को। तो फ्यूचर टेंस की आवश्यकता क्यों? फ्यूचर टेंस का काम होता है फ्यूचर टाइम को बताना। जब प्रेजेंट और पास्ट ही मिलकर के तीनों टाइम को इंडिकेट कर रहा है तो फ्यूचर टेंस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि आप देखें ही गोज टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगा, यहाँ गोज का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। अब तो ये प्रेजेंट टेंस में लेकिन टाइम फ्यूचर टाइम बता रहा है। जैसे और सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ही इज गोइंग टू पटना टुमारो, इसका यह मतलब हो गया कि कल वो पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा। तो यहां पर इज गोइंग क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है लेकिन ये फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। जैसे अगर हम सनसनी खबर बोल रहे हैं, इंडिया becomes free in 1947, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही पास्ट टाइम का, यहां पर इसका मतलब होता है पास्ट टाइम का बोध करा रहा है। यहां पर ये बिकम्स जो है वो पास्ट टाइम को बोध करा रहा है, तो प्रेजेंट ही पास्ट का अगर बोध करा रहा है, प्रेजेंट का भी बोध करा रहा है और प्रेजेंट जो है फ्यूचर का भी बोध करा रहा है, तो फ्यूचर टेंस की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैल विल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में। शैल विल हटा दो क्योंकि प्रेजेंट टेंस के पास अपना वर्ब होता है, फ्यूचर पास्ट टेंस के पास अपना वर्ब होता है। जैसे हम बोलते हैं कपिल देव प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज क्या है? प्लेज अपना वर्ब है प्रेजेंट टेंस के पास। कपिल देव प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड क्या है? अपना वर्ब है। लेकिन कपिल देव विल प्ले क्रिकेट, विल की आवश्यकता हो रही है, तो विल वहां पर विल हटा दो तो टेंस डेड हो जाता है। तो शैल विल का अच्छा प्रयोग तो हम मोडाल्स में पढ़ लेते हैं। शैल विल का प्रयोग तो मन की बात को, फ्यूचर की बात को बताने के लिए मोडाल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर हम टेंस में क्यों पढ़े? इसलिए जो है टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन हम ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से ही यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे टाइम टेंस। कैसा लग रहा है वीडियो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें अपने दोस्तों के बीच। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार जानदार वीडियो होगा दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? देखिए याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हुआ हो, नेवर लिखा हुआ हो, एवरी डे लिखा हुआ हो, एवरी वीक लिखा हुआ हो, एवरी मंथ लिखा हुआ हो, ऑफन लिखा हो, यूजली लिखा हो, जनरली लिखा हुआ रहो, वंस लिखा रहा हो, ट्वाइस रहे, समटाइम्स रहे,
सेल्डम रहे, सेवरल टाइम से वीक रहे, तो याद रखना उस टेंस में आप V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर यहां पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, ही ऑलवेज डॉट 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 लेट। अब यहां पर कम आएगा, कम का कौन सा रूप आएगा, कम का कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ये समझना जरूरी है। तो देखिए कम का यहां पर क्या आ जाएगा, V5 आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। क्यों आएगा, और कम्स जो है ये सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, रूल है दोस्तों। यहां ही जो है सिंगुलर है, इसलिए यहां पर कम्स आ रहा है, और ऑलवेज आ गया। ऑलवेज जो है एडवर्ब है, ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट करने वाले एडवर्ब है। टाइम को, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाले, कोई हैबिट को इंडिकेट करने वाले, कोई यूनिवर्सल चीज को बताने वाले ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इसलिए ऑलवेज के आने से यहां पर V5 लगा दोस्तों। अगर यहीं पर अगर रहता ही नेवर ए लाई रहता, तो यहां पर टेल का कौन सा रूप होगा, तो यहां टेल का जो है क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा टेल्स, क्योंकि नेवर लग गया इसलिए V5 लग रहा है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर किसी इस ब्रह्मांड के किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज रहे, नेवर रहे, एवरी डे रहे, एवरी वीक रहे, एवरी मंथ रहे, ऑफन रहे, यूजुअली रहे, जनरली रहे, वंस रहे, ट्वाइस रहे, समटाइम्स रहे, सेल्डम रहे, सेवरल टाइम्स अ वीक रहे, तो उस टेंस उसमें हम V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा, क्योंकि ही सी इट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब V5 लगेगा ही, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यहां पर यू रहता तो यहां पर कम हो जाता, यहां पर आई रहता तो कम हो जाता, यहां पर दे रहता तो कम हो जाता। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट करें, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डेली जो सेंटेंसेस यूज करते हैं 30% सेंटेंसेस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। डेली अगर आप सेंटेंस 100 सेंटेंसेस बोलते हैं अपने लाइफ में डेली तो 30 सेंटेंसेस जो होता है आपका 100 में 30 सेंटेंसेस जो होता है वो क्या होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए तो आप स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हैं, आप स्पीक कर सकते हैं, आप राइटिंग स्किल अच्छा हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल अच्छा हो जाएगा, रीडिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। यह टेंस का कॉन्सेप्ट, टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर आप हमें शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगले एपिसोड में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर आप कमेंट करें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और आपको इसमें कुछ इंप्रूव करना है, अपना फीडबैक जरूर दे, अपना कॉम्प्लीमेंट जरूर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।